Tom Yorkfield had always disliked his half-brother Lawrence. टॉम यॉर्कफील्ड को हमेशा से अपने सौतेले भाई लॉरेंस से नफरत सी थी। There was no particular reason to dislike him. उसे नापसंद करने की कोई खास वजह नहीं थी। For he was just a blood relation. क्योंकि वो बस एक खून का रिश्ता था। With whom Tom had no single taste or interest in common. जिसके साथ टॉम की कोई पसंद या शौक मिलते नहीं थे। And with whom at the same time he had no occasion for quarrel. और साथ ही कभी उसके साथ किसी बात पर झगड़ा तक नहीं हुआ था। लॉरेंस had left the farm early in life. लॉरेंस ने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में ही फार्म छोड़ दिया था। And had lived for a few years on a small sum of money left to him by his mother. और कुछ सालों तक वो अपनी माँ के छोड़े गए थोड़े से पैसों से गुजारा करता रहा। He had taken up painting as a profession. उसने बाद में पेंटिंग को अपना पेशा बना लिया था। And was reported to be doing fairly well at it. और लोगों का कहना था कि वो इस काम में ठीक ठाक कर रहा था। Well enough at any rate to keep body and soul together. इतना तो ज़रूर कमा लेता था कि उसका पेट भर सके और ज़िंदगी चलती रहे। He specialized in painting animals. वो जानवरों की पेंटिंग बनाने में स्पेशलिस्ट था। And he was successful in finding a certain number of people to buy his pictures. और कुछ लोग जो उसकी पिक्चर खरीद सकें उन्हें ढूंढ ही लेता था। Tom felt a sense of superiority by comparing his position with that of his half brother. और टॉम को अपने सौतेले भाई से खुद को बेहतर समझने का रोग था। Lawrence was an artist chap, just that, and nothing more. टॉम को लगता था कि लॉरेंस तो बस एक कलाकार ही है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। Though you might make it sound more important by calling me an animal painter, हालांकि आप लोग उसे जानवरों का चित्रकार कहकर उसकी बात को खास बना सकते हैं। Tom was a farmer, not in a very big way, it was true. टॉम एक किसान था, ये बात सही है कि कोई बहुत बड़ा नहीं था। But the Halsey farm had been in the family for some generations. लेकिन हेल्सरी फार्म उसके परिवार में कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। And it had a good reputation for the stock raised on it. और वहाँ पाले गए जानवरों की अच्छी खासी पहचान थी। Tom had done his best with the little capital at his command to maintain and improve the standard of his small herd of cattle. टॉम ने अपनी थोड़ी सी पूंजी के साथ अपनी गाय बैलों की छोटी सी टोली की देखभाल और स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता था। He had bred a bull, Clover Fairy, which was something rather better than any that his immediate neighbor could show. उसने एक बैल पाला था जिसका नाम क्लोवर फेरी था और वो उसके आसपास के किसी भी पड़ोसी के बैल से बेहतर था। It would not have won at an important cattle show. वो भले ही किसी बड़े जानवरों की प्रदर्शनी में इनाम ना जीता हो, but it was as vigorous, shapely and healthy a young animal as any small farmer could wish to possess. लेकिन वो एक मजबूत, सुंदर आकार वाला और सेहतमंद जानवर था, जैसा कि कोई भी छोटा किसान पाना चाहेगा। At the King's Head on market days, Clover Fairy was very highly spoken of. King's Head पर जब बाजार लगती तो क्लेवर फेरी की बहुत तारीफ होती थी। And Yorkfield used to declare that he would not part with him for 100 pounds. और टॉम लोगों से कहता फिरता था कि वो उसे 100 पाउंड में भी नहीं बेचेगा। It was with some special pleasure that Tom took advantage of one of Lawrence's rare visits to the farm to lead him down to the enclosure where he kept Clover Fairy. Tom को खास खुशी तब हुई जब लॉरेंस बहुत दिनों बाद उसके फार्म पर आया और वो उसे क्लोवर फेरी को दिखाने के लिए बाड़े की ओर लेकर चल पड़ा।
Tom felt some of his old dislike for his half-brother reviving. टॉम को अपने सौतेली भाई के लिए पुरानी नफरत फिर से महसूस होने लगी. The artist was becoming more lazy in his manner. लॉरेंस अब और भी सुस्त और आलसी लग रहा था. More unsuitable in the way he dressed up. और उसके कपड़े पहनने का ढंग भी अजीब और बेढंगा था. And he seemed to talk to Tom with an air of superiority. और वो टॉम से इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो खुद को बेहतर समझता हो. He took no heed of a flourishing potato crop or a group of fat, black-faced lambs that simply cried aloud for admiration. उसने खेत की हरी भरी आलू की फसल और मोटे मोटे काले चेहरे वाले मेमनों की तरफ देखा तक नहीं जो वाकई में तारीफ के लायक थे. Some weeks ago, while on a business journey to Taunton, कुछ हफ्ते पहले टॉम बिजनेस के सिलसिले में टॉन्टन गया हुआ था. Tom had been invited by his half-brother to visit a studio in that town. वहाँ उसके सौतेले भाई लॉरेंस ने उसे अपने स्टूडियो में आने का न्योता दिया था. Where Lawrence was exhibiting one of his pictures. जहाँ लॉरेंस अपनी बनाई एक तस्वीर की नुमाइश दिखा रहा था. A large canvas representing a bull standing knee deep in some marshy ground. एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें एक बैल दलदली ज़मीन में घुटनों तक खड़ा था. It had been good of its kind, no doubt. इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छी पेंटिंग थी. And Lawrence had seemed very pleased with it. और लॉरेंस उस पेंटिंग से बहुत खुश नज़र आ रहा था. The best thing I have done yet, he had said over and over again. ये अब तक की मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग है, लॉरेंस बार बार यही कह रहा था. एंड टॉम हैड जनरसली एग्रीड दैट इट वाज फेयरली लाइफ लाइक. और टॉम ने भी खुले दिल से तस्लीम किया कि वो पेंटिंग काफ़ी हद तक असली जैसी लग रही थी. नाउ द मैन ऑफ पेंटिंग वाज गोइंग टू बी शोन अ रियल पिक्चर. अब उस पेंटिंग बनाने वाले को एक असली तस्वीर दिखाई जाने वाली थी. अ लिविंग मॉडल, एक जीता जागता मॉडल. A picture that presented new pose and action with every shifting minute. एक ऐसी तस्वीर जो हर पल नई शक्ल और हरकत दिखा रही थी. Instead of standing glued in one position between the four walls of a frame. ना कि किसी फ्रेम की चार दीवारों में चिपक कर एक ही जगह खड़ी रहने वाली. Tom unfastened a wooden door and led the way into a yard. टॉम ने एक लकड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे आंगन की ओर ले गया. Is he quiet? asked the artist, as a young bull with a curly red coat came inquiringly towards them. क्या ये शांत स्वभाव का है? कलाकार ने पूछा जब एक घुंघराले लाल बालों वाला जवान बैल जिज्ञासु होकर उनकी ओर आने लगा. He is playful at times, said Tom. ये कभी कभी खेलता भी है, टॉम ने कहा. Leaving his half-brother to wonder what the bull's ideas of being playful were. खेलता है. लॉरेंस सोच में पड़ गया कि इस बैल का खेलना क्या होता है. लॉरेंस made one or two comments on the animal's appearance. लॉरेंस ने उस जानवर के रंग रूप पर एक दो कमेंट्स किए. And asked a question or two as to his age and such like details. और उसकी उम्र वगैरह के बारे में कुछ सवाल किए. Then he coolly turned the talk into another channel. फिर उसने बड़ी आसानी से डिस्कशन को बदल दिया. Do you remember the picture I showed you at Taunton? He asked. क्या तुम्हें वो पेंटिंग याद है जो मैंने तुम्हें टॉन्टन में दिखाई थी? उसने पूछा. Yes, grunted Tom. A white-faced bull standing in some mud. हाँ, टॉम ने बड़बड़ाते हुए कहा. एक सफ़ेद चेहरे वाला बैल जो कीचड़ में खड़ा था. I've sold that picture, said Lawrence, with considerable satisfaction in his voice. मैंने वो पेंटिंग बेच दी है. लॉरेंस ने खुशी जाहिर करते हुए बड़े इत्मीनान से कहा. Have you? said Tom. Glad to hear it. I'm sure. Hope you're pleased with what you've got for it. सच में? टॉम ने कहा. अच्छा लगा सुनकर. सच में. उम्मीद है तुम्हें उसके बदले में अच्छा दाम मिला होगा. I got 300 pounds for it, said Lawrence. मेरी वो पेंटिंग 300 पाउंड में बिकी, लॉरेंस ने कहा. Tom turned towards him with a slowly rising flush of anger in his face.
300 पाउंड्स। टॉम गुस्से से लाल होता हुआ उसकी ओर मुड़ा। 300 पाउंड। Under the most favorable market conditions that he could imagine, his alive and moving bull, Clover Fairy, would hardly fetch 100. सबसे अच्छे बाजार भाव में भी जितने की वो कल्पना कर सकता था, उसका जीता जागता बैल क्लोवर फेरी 100 पाउंड भी मुश्किल से ला पाता। Yet here was a piece of canvas painted by his half-brother, selling for 3 times that sum. It was a cruel insult. लेकिन यहाँ उसके सौतेले भाई द्वारा बनाई गई एक कपड़े की पेंटिंग थी जो उस कीमत से 3 गुना में बिक गई। ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात थी। The young farmer had meant to put his relative in his right place by displaying the jewel of his possessions. और टॉम ने सोचा था कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ दिखाकर अपने रिश्तेदार को उसकी औकात दिखा देगा। एंड नाउ द टेबल्स वर टर्न। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए थे। एंड हिज वैल्यूड बीस्ट वॉज बीइंग मेड टू लुक चीप एंड इनसिग्निफिकेंट बिसाइड द प्राइस पेड फॉर अ मियर पिक्चर। और उसकी कीमती बैल वाली एक साधारण सी पेंटिंग की कीमत के सामने उसका बैल सस्ता और तुच्छ लगने लगा था। When he gave tongue to his feeling, he put matters bluntly and harshly. उसके मन की बात उसकी ज़बान पर सीधे और कठोर शब्दों में बाहर निकली। Some soft-witted fools may like to throw away 300 pounds on a bit of paint work. I would rather have the real thing than a picture of it. कुछ कम अकल लोग शायद एक पेंट और रंग की तस्वीर पर 300 पाउंड फेंकना पसंद करें। मैं तो असली चीज़ को तस्वीर से कहीं ज़्यादा पसंद करूँगा। He nodded towards the young bull that was alternately staring at them with nose held high and lowering its horns with a half playful, half impatient shake of the head. उसने उस नौजवान बैल की तरफ इशारा किया जो कभी ऊंची नाक करके उन्हें घूर रहा था और कभी अपनी सींग नीचे करके आधा खेल खेल में आधा झुंझलाहट में सिर हिला रहा था। लॉरेंस laughed as he found Tom's argument very amusing. लॉरेंस हंस पड़ा क्योंकि उसे टॉम की बात बहुत मज़ेदार लगी। It was too much. ये सब टॉम के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। Tom made a grab at the loose collar of Lawrence's silk shirt. टॉम ने लॉरेंस की रेशमी शर्ट के ढीले कॉलर को पकड़ लिया। लॉरेंस was not a fighting man. लॉरेंस झगड़ालू इंसान नहीं था। The fear of physical violence threw him off his balance. मारपीट के डर से वो घबरा गया और संतुलन बिगड़ गया। And thus it came to pass that Clover Fairy was overjoyed to see 2 human beings fighting across her enclosure. और फिर ऐसा हुआ कि क्लोवर फेरी बहुत खुश हो गया जब उसने देखा कि 2 इंसान उसके बाड़े में लड़ रहे हैं। In another happy moment, the bull tossed Lawrence in the air. और अगले ही पल में बैल ने लॉरेंस को हवा में उछाल दिया। And tried to prod him in the ribs while he was still in the air. और अभी हवा ही में था तभी बैल ने उसे पसलियों में सींग मारने की कोशिश की। It was only the timely intervention of Tom that stopped the bull from hitting Lawrence. टॉम के सही वक्त पर बीच में आ जाने से ही बैल को लॉरेंस को मारने से रोका जा सका। Tom devotedly nursed his half-brother to a complete recovery from his injuries. अब टॉम ने अपने सौतेले भाई की पूरी लगन से देखभाल की जब तक वो अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। Which consisted of nothing more serious than a dislocated shoulder and a broken rib or two. जिसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थी, बस एक कंधा उतर गया था और 1-2 पसलियां टूट गई थीं। After all, there was no further reason for jealousy in the young farmer's mind. आखिरकार अब उस नौजवान किसान के मन में जलन की कोई वजह नहीं बची थी। Lawrence bull might sell for 300 or for 600. लॉरेंस की पेंटिंग का बैल चाहे 300 में बिके ये 600 में। But it would never toss a man in the air and hit him in the ribs. लेकिन वो कभी भी
किसी आदमी को हवा में उछालकर पसलियों में नहीं मार सकता, जैसा मिरेबेल क्लोवर फेरी ने किया। That was Clover Fairy's noteworthy achievement, which could never be taken away from him. यह तो बस क्लेवर फेरी की खास उपलब्धि है जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। Lawrence continues to be popular as an animal artist, but his subjects are always kittens or fawns or lambkins, never bulls. लॉरेंस अब भी जानवरों के चित्रकार के रूप में मशहूर है, लेकिन वो हमेशा बिल्ली के बच्चे, हिरन के बच्चे या मेमनों की पेंटिंग बनाता है, मगर बैलों की कभी नहीं।